In this video, let's talk about what to do when you feel like doing nothing. When everything feels exhausting and you have no energy or motivation to do anything. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Akshita, second year MBBS student at GUC Saharanpur. I know many of you want to listen some tips and tricks on how to be productive when you are feeling unmotivated. But the truth is that when you are in this low state, the best thing you can do is the opposite of being productive. Yes, the opposite of being productive, that is being slow and being gentle on yourself. Have you ever thought, why are we always in such a hurry? Why are we always trying to compete with ourselves to become like someone else? क्यों हमें अपनी लाइफ में हर एक चीज़ इतनी जल्दी चाहिए होती है, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो मनी हो, चाहे लाइफ की कोई भी चीज़ हो. Why are you in such a hurry? अगर आप unproductive या unmotivated feel कर रहे हो, then the only reason behind it is that कि आपका कोई प्लान किया हुआ काम आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पाया. For example, let's take an example कि आप सुबह जल्दी उठे and आप सुबह तो बहुत ज़्यादा motivated feel कर रहे थे and you tried to write a to-do list. उस to-do list में आपने बहुत सारे टास्क लिख दिए जो कि बहुत अनरियलिस्टिक थे पूरे होने, क्योंकि आप सुबह बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे थे and you end up writing a lot of things to do in that particular day. And जब आप उस लिस्ट को पूरा करने की कोशिश करते हो then आप वो पूरे टास्क पूरे नहीं कर पाते and you start feeling demotivated and you end up doing nothing. The other reason of being unproductive can be others having very high expectations from you. चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके आसपास के लोग. हम अपने माइंड में एक इमेज बना लेते हैं कि हमारी लाइफ तो ऐसी ही होनी चाहिए, हमारा फ्यूचर तो ऐसा ही होना चाहिए, और जब वो सारा आपका माइंड में जो आप सोचते हो वो पूरा नहीं हो पाता, then that's the only thing that makes you unproductive. हम लाइफ के एक्सटर्नल सक्सेस के पीछे भागते भागते लाइफ का रियल मीनिंग ही भूल जाते हैं. लाइफ के पीछे इतना भागते भागते, now this is your sign to go inward, slow down and love yourself. You have to release the control on yourself and all expectations you have. आप जैसे हो अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करना स्टार्ट करें. ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? Let me give you some advice. Firstly, you have to take some rest. Yes, your body needs some rest. Slow down, be gentle on yourself and give some time to your body, relax and cool down. That's the main thing. Secondly, love yourself. It means accept the flaws in you and accept the way you are. आप जैसे हो अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स मत करो and forgive yourself if you ever been hard on yourself. Third one is focus. Focus on the present, not in the future and not in the past. Let's take example of me as parents. तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो आगे का फ्यूचर का सोचने लग जाते हैं और वो अपना प्रेजेंट भी उस वजह से ख़राब कर लेते हैं. वो ये सोचते रहते हैं कि हमारा एडमिशन इस कॉलेज में होगा, उस कॉलेज में होगा. वो एक हायर एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं अपने लिए और वो उस अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, हार्डवर्क उस अकॉर्डिंगली नहीं कर पाते और एंड में वो अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं, अनमोटिवेटेड हो जाते हैं. बच्चे ऐसे होते हैं, वो पास्ट के बारे में सोचते हैं कि मेरे उस वक्त इतने कम नंबर आए थे. वो एक टेस्ट को लेके बैठ जाते हैं कि मेरे इस मॉक टेस्ट में इतने कम नंबर आए थे और वो उसी को लेकर रोते रहते हैं कि मतलब अब तो कुछ मेरा नहीं हो पाएगा और अब तो मैं ऐसे ही रह जाऊँगा.
नहीं करना है. You have to live in the present and you have to go with the flow. Fifth one is nature. Go out for a walk, have some fresh air. जब आप बाहर नेचर में जाते हो तब आपको ये बात रियलाइज होती है that you are a very small part of this big world. आपको नेचर से वो स्टिलनेस, कामनेस सीखने को मिलती है. आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको कोई बड़ी सी ट्रिप पर नहीं जाना. बस हैव टू गो, लाइक आप पार्क में जा सकते हो अपने घर के पास. शाम को आप साइकिल चलाने जा सकते हो. नेक्स्ट वन इज साइकिल ऑफ लाइफ. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वर्क्स ऑन अ साइकिल. चाहे वो सन हो, चाहे वो मून हो, चाहे वो हमारी अर्थ ही क्यों ना हो, सब चीज़ साइकिल ऑफ इवेंट्स पे काम करती है. अब चाहे हमारी लाइफ हो, लाइफ में भी आपके बुरे दिन आते हैं, आपके अच्छे दिन आते हैं. कभी भी ये नहीं रहता कि बुरे ही दिन चलते जाए. अच्छे दिन आएंगे, फिर बुरे दिन आएंगे, फिर अच्छे दिन आएंगे. इट्स अ साइकिल ऑफ इवेंट्स. नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ एंड यू डोंट हैव टू वरी. लाइफ में वो ही सक्सेसफुल होता है जो अपने बुरे दिन को भी इंजॉय करे. ये नहीं कि वो अच्छे दिन को एंजॉय करे, उन बुरे दिनों को भी एंजॉय करे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रेटिट्यूड. फील ग्रेटिट्यूड फॉर एवरी स्मॉल थिंग इन योर लाइफ. चाहे वो कुछ भी. रात को सोने से पहले अपनी डायरी में वो लिखो दैट व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर. आप ये लिख सकते हो अपनी डायरी में दैट आई एम ब्लेस्ड टू हैव अनदर डे इन माई लाइफ. I am blessed to have a family. I am blessed to eat and do whatever I want to do. And trust me, you will see changes in your life. Just remember one thing. It's normal to feel unproductive and unmotivated at some point of your life. कुछ टाइम जब आप प्रेपरेशन कर रहे हो नीट की, तब कुछ डेज आपके ऐसे होंगे जब आप बहुत अनप्रोडक्टिव फील करोगे. आपको अपने आप पे इतना हार्श नहीं होना है इस बात पे कि हाँ मेरा तो आज का पूरा दिन ही वेस्ट हो गया. इट्स ओके. सबके साथ ऐसा होता है प्रिपरेशन के टाइम पे. लाइफ में हर किसी के साथ ऐसा होता है. आपको बस आप अपने ऊपर हार्श नहीं होना है. यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड गिव योर सेल्फ सम टाइम. जब आप अपने आप को अच्छे से रिजुविनेट कर लो, देन यू हैव टू वर्क हार्ड फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे. आपको अगले दिन से एकदम अच्छे से हार्ड वर्क करना होगा उस काम के लिए. एक दिन रेस्ट ले लिया, चलता है. एक दो दिन चल गया, आपने रेस्ट लिया अच्छे से. अब उस रेस्ट का कुछ फ़ायदा भी होना चाहिए कि उस रेस्ट का ये फ़ायदा होना चाहिए कि आप अगले दिन से पहले से ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा मोटिवेशन के साथ अपना काम कर सको. So that's all for today's video, and the conclusion is that you don't have to be harsh on yourself. The unproductive and unmotivated days are normal in everyone's life. So that's all from my side, and